آج دوسرا پروگرام سائلیج کے بعد جو پریزرویشن فارڈر کو کس طرح ہم نے محفوظ کرنا ہے پورے سال کے لیے. تو سائلیج کی فیسیلٹی ہر جگہ نہیں ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ تو اس کا حل بھی یہ نکالا ہے جو بلکہ 3 سال ہو گئے فیس بک پہ ہم نے 2-3 چارہ-جات کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. اور میرے گروپ میں اس وقت 14,000 گروپ ممبر ہیں جو میری مشاورت سے اور ان کو بہتر طریقے سے نئی فارمنگ پروفٹیبل فارمنگ کر رہے ہیں جو کہ بہت آسان ہے. آج تک کوئی کسی فورم پہ یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہمارے عام جو دیہاتی ہیں بیچارے ان کی کوئی مدد ہو سکے. ان کو صرف بتانا ہی ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سائلیج بنانا اور بنکر کے بغیر میں نے بنا کے بتایا لوگوں کو. تو اس میں اگر آپ بنکر بنانا بھی ختم کر دیا لیکن اس میں چاپر مشین جو بڑی اہم ہے وہ 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے. تو اس میں وہ جو 2 ایکڑ کا اگر 1000 من 1,500 من بڑی ٹرالی جیسے گنے کی ہے اس کو کترنا وہ بڑا مشکل ہے. ٹوکے سے تو کترنا بہت ہی کئی لوگ کرتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ سے چلتے ہیں ٹوکے اس سے بنا سکتے ہیں. اب سائلیج کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ یہ جو روز کی مصیبت جو چارہ کاٹنے کی وہ ختم کی جائے. اگر زیادہ جانور بھی ہو تو ایک نوکر جو آپ سے تنخواہ لیتا ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے لے لیتا ہے. تو اگر 2 نوکر آپ نے رکھے ہوئے ہیں 10-15 جانور ہیں آپ کے یا 10 جانور ہیں 10 جانوروں پہ 2 تو وہ 4 لاکھ تو مائنس میں وہ ہو گیا. تو 4 آپ کو 5 لاکھ پروفٹ ہوگا. تو اس میں یہ پروفٹیبل ہی نہیں ہے. اسی لیے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آج تک منافع نہیں ہو سکا. لیکن روڈ گراس ایک ایسا چارہ ہے جو کہ 20 سال سے کاشت ہو رہا ہے اور وہ عام آدمی کے پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کہ یہ کیا چیز ہے. صرف وہ نیسلے اور بڑی کمپنی کے جو ملٹی نیشنل ہیں ادھر اور پرویز لائی کا فارم ہو گیا یہ پرائم اور دوسرا حمزہ اور جو میاں منشا کا فارم وہ جتنے بھی بڑے فارم پہ جانور ہیں ان میں یہ روڈ گراس ایسے ڈرائی میٹر خشک مادہ کیونکہ خشک مادہ وہ سائلیج سے پورا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک جانور کو ونڈا 10 کلو دے رہے ہیں 8 کلو دے رہے ہیں 40 لیٹر پہ تو اس میں وہ صرف سائلیج سے کام نہیں ہوگا. سائلیج آپ 10 کلو سائلیج میں 3 کلو ڈرائی میٹر ہے 3 kg اور 500 جو کلو کا جانور ہے اس کو 15 kg ڈرائی میٹر چاہیے. تو چارہ بھی اسی لیے نہیں کھلاتے. سب سے اچھا جو چارہ ہوتا ہے ہمارے جو چارہ جات ہیں اس میں جب وہ سٹے پہ آتے ہیں تو جیسے چری ہے یا آم لگاتے ہیں لوگ تو وہ تو بڑی تھوڑا ٹائم کے لیے اس میں ڈرائی میٹر جو 30% ہوتا ہے 30-35% یا نمی آپ کہہ لیں کہ وہ 70% ہوتی ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے جانور کی. اس پہ اس کا میکسیمم جو فائبر بھی سخت نہیں ہوتا تھا نا اس کے بعد وہ سخت ہو جاتا ہے. تو پہلے بھی ڈرائی میٹر کم ہوتا ہے وہ جو کچا چارہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ روڈ گراس ہم لائے ہیں جس کی وجہ سے جو عام آدمی کو بھی ہم نے ½ کلو
किंग सीड के तावन से भेजा 3 साल पहले। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, और वो 5 साल पहले भी किसी कंपनी ने लॉन्च किया था ये रोड ग्रास। उसमें इतने वो कांटे थे, वो 3rd क्लास वैरायटी है, उसमें वो काटने में ही मसला है, वो जानवरों के मुंह में चुभता है। काटम बोरा अब भी कई कंपनियां बेच रही हैं, काटम बोरा। तो ये जो फाइन कट वैरायटी है ये मैक्सम के पास अवेलेबल था। मैक्सम तो उसका रेट ज़्यादा है, और वो लूज पैक में नहीं देते। अब एक आम आदमी उसके पास अगर एक गाय है तो उसको 1 पाव चाहिए, ठीक है। अब वो 20,000 रुपये तो नहीं है उसके पास। तो पहले तो पता ही नहीं लोगों को कि ये है क्या चीज़। ये गर्मियों का चारा है, और इसकी जो प्रोडक्शन है 40 दिन के बाद ये आप पहली कटाई लेते हैं, 40 दिन बाद। अब अगर आप मौसम है, अब आप लगाएंगे उसको रोड ग्रास को, तो वो 6 से 7 कटाइयाँ देगा। और उसकी जो 200 मन यील्ड है, जो अच्छी ज़मीन होगी, और उसमें ये क्वालिटी है कि आप हल्की ज़मीन में लगा सकते हैं, रेतली में लगा सकते हैं, थल में। मैंने खुद देखा है जाके, बहुत सारे लोगों से मैंने किया और उधर से फीडबैक मिला है। और कलर वाली ज़मीनों, जैसे सरगोदा के पास कई इलाके हैं, जोरा और सेमज़दा इलाके जिसमें कोई चीज़ उगती ही नहीं, उसमें इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसी तरह हम जो इसका आजकल बरानी एरिए में 100 ग्राम की पैक करवा के, मेरी कंपनी नहीं है, वो सादकाबाद की है, किंग सीड को, लेकिन वो हमारा जॉइंट वेंचर है टू इंट्रोड्यूस दिस सीड एट ग्रास रूट लेवल। हमारा आम आदमी जो बकरी वाला है वो भी 300 रुपये में फ़ोन करके घर मंगवाएगा। और बहुत सा हज़ारों लोगों ने ये लगाए हैं पिछले साल, और इस दफ़ा हमने 100 ग्राम कर दिया। पहले 250 ग्राम की पैक थी, तो अब 100 ग्राम में ये है कि बरानी एरिए में अगर वो जैसे बारिशें अब आ रही हैं बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, अब भी ये 18 से 23 तक बारिश की प्रेडिक्शन है। वो 100 ग्राम ही अगर वो लगाएंगे ना, जो खालियाँ बना के जहाँ पानी खड़ा हो, या वैसे ही छट्टा दे दें, तो वो 1 हफ्ते में उग जाता है। और अगर वो उग गया तो उसका ये बड़ा सख्त जान है, ये साए में भी होता है, और इसमें जो रीजनरेशन पावर बहुत है। अगर ये खुश्क भी हो जाए तो फिर बारिश आएगी तो फिर उग जाएगा। तो ये अगर हमारा ट्रायल बहुत सारे लोगों ने किया है, और लेकिन उन्होंने घरों के पास लगाया, और जहाँ से वो नलके से या पाइप से पानी दे के अपना 2 साल 4 साल तक चारा ले सकते हैं, और ले रहे हैं। और सबके एड्रेस हमारे पास है, सारा डेटा है, जो किंग सीड जो पूरा उनके पास कोरियर नंबर, और बहुत लोग खुश हैं कि उनको एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो बहुत पहले आ जानी चाहिए, लेकिन उसको किसी ने बताया ही नहीं। भी रोड ग्रास वैसे ही सुना था भी ये रोड ग्रास एक होता है, या किताबों में, या कोई बाहर का कोई गोरा आया, या कोई वो बता गया साइलेज है और ये है। ये तो 30 साल हो गए ये बातें करते हैं लोग, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया। हज़ारों लोग साइलेज बना रहे हैं और ये रोड ग्रास लगा रहे हैं। तो आप रोड ग्रास लगाएं जिनके पास साइलेज बनाने की सहूलत नहीं, और ये साइलेज से बहुत सस्ता है। 8 kg इसका सीड पड़ता है, और 2200 रुपये किलो सीड है मेरा। तो आप थोड़ा लगा लें, आधा किलो पैक भी है, 1 पाव है, 250 ग्राम और 100 ग्राम। 100 ग्राम तो बनाया ना, बकरियां बेचारों की, कई लोग
2-3 बकरियां वो भूखी मर जाती। तो उसको जब सारा साल अच्छी ग़िज़ा मिलेगी तो वो बकरी भी बेहतर होगी, वो दूध भी अच्छा होगा, उसके बच्चे भी बेहतर होंगे। और प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी खुराक चाहिए बकरी को या कोई भी जानवर। तो वो ये सारा जो मसला जानवरों में परवरिश मेन इशू है कि अच्छी खुराक मिले। अच्छी खुराक मिलेगी तो वो बीमार भी नहीं होगा। वो कमज़ोर होता है तो वो बार बार डिवर्मिंग करते हैं। बकरियों में तो चलो 6 महीने के बाद कर देनी चाहिए ग्रेजिंग जो करती हैं। जो जानवर बाहर नहीं जाते उनको तो एक दफ़ा ही काफ़ी है, अदरवाइज़ वो बार बार उसकी डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। ये वहम है। वो तूड़ी खिला खिला के अगर कमज़ोर जानवर है तो उसको आप रोज़ डिवर्मिंग करते जाएं तो उससे वो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। ये हमारी साइंस से ये जो बात है ये तो बस वो फैशन बन गया है। लोग अस्पताल में भी जाके कहते हैं जी वो कीड़ों की दवाई दे दें। उनको पता है ये दवाई मिलनी है, एक वो चूरन मिलना या ये जो कीड़ों की दवाई। और बदहज़मी क्यों होती है? जब आप ज़्यादा तूड़ी डाल देते हैं और उसको मुनासिब खुराक नहीं मिलती तो जानवर बीमार हो जाता है। और ज़्यादा आप सब्ज़ चारा दे देते हैं, जैसे बकरियों की ज़्यादा सब्ज़ अब लूसन है जो उसमें वो जो 10% ड्राई मैटर है उसमें तो पानी है सारा, तो इसीलिए वो लूसन में वो लोग तूड़ी मिलाते हैं। वो तूड़ी की जगह ब्राउन तूड़ी डालें और या रोड ग्रास की खुश्क हे करके डालें। तो रोड ग्रास पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप जो रोड ग्रास 1 एकड़ से 40 दिन बाद वो 200 मन यील्ड देता है और उसको आप खुश्क करके डालेंगे तो वो 30 किलो की बजाय वो 10 किलो काफ़ी है। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, वो कहते हैं जी खुश्क चारा ये तो नाकस हो गया। या जब ये नरम चारे हैं तने वाले, ये जो बरसीम है या लूसन है, वो दुनिया में सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान से कंटेनरों में बाहर जा रहा है रोड ग्रास, और सिंध में लोगों ने लगाया हुआ है तो वो 20-30 रुपए किलो है। वो पागल है जो इधर से लेके जाती हैं और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि हमें पता ही नहीं। हमें सीड वो कहते हैं 20,000 का मिलेगा। अब एक आदमी को 2 बकरियां, वो उसको भी रिक्वायरमेंट है कि वो उसकी बकरी भी पल जाए। तो हमारा यही एजेंडा है कि लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पे 2012 से मेरा पेज भी है, लेकिन अब महकमे में रह के भी कोशिश की लेकिन वहाँ वो उल्टी रिजल्ट आए। जो भी कोई काम करे उसको, अभी तक लाइव स्टॉक फार्मों पे 100% साइलेज और कोई नहीं है। वहाँ कमाद गा रहे हैं, कमाद और सुहांजना, पता नहीं क्या क्या अल्लाह जाने वहाँ उनका क्या। जब मैं रख डेरा चाल में रहा हूँ मैंने सारे ट्रैक्टर बंद कर दिए 3 महीने के बाद। जब आपके 100 जानवर हैं 50 एकड़ लगा के बंद कर दें, ट्यूबवेल हर चीज़ बंद कर दें। 50 जानवरों के लिए 100 जानवरों के लिए 50 एकड़ लगा के साइलेज बनाया और सारे साल के एक्सपेंडिचर ज़ीरो, ट्रैक्टरों की रिपेयर ज़ीरो, ट्रैक्टरों का बिजली का बिल 0 3 महीने के बाद। और वही ज़मीन है उस पर आप खाली भी छोड़ दें फिर भी फायदा। कैश क्रॉप अगर वो कोई लगा सकता तो लगाए। तो ये अब ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। ये जो अब कोई आदमी ब्यूरोक्रेट इम्प्लीमेंट करते हैं या जो भी करते हैं, अब एक आम आदमी अनपढ़ को पता है कि ये इस तरह हो जाएगा, तो वो जो डायरेक्टर हैं या बहुत चीज़ें पढ़ी हैं उनकी ये समझ में नहीं आती बात। वो मुर्गी अंडा और ये जो बकरी दे दो, बकरी दोगे तो वो मर जाएगी। बकरी को तो उसकी फीडिंग तो बहुत सारी बकरियां मर गई सर्दी से, बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा सर्दी माइनस में टेम्परेचर चला गया तो उनकी खुराक ही नहीं अच्छी थी, ना उनको लोगों को पता था अंडा दे। गरीब आदमी बेचारा किधर से उसको, अगर उसके पास ये खुश्क रोड ग्रास होता है तो इसमें 10% क्रूड फाइबर प्रोटीन है,
تو وہ کھلا دیتا تو اس کے جانور نہ مرتے. یا لوسن خشک کر لیتا. سدا بہار لوسن کا بھی یہی ییلڈ ہے. وہ بھی 40 دن بعد 200 من دیتا ہے، لیکن اس میں کم نکلتا ہے ڈرائی میٹر. یہ 100 کلو میں سے 20 کلو نکلے گا، اس کا 30-35 کلو نکلے گا. روڈ گراس 35 kg نکلے گا. تو اگر آپ دونوں کا آپ ہے بنائیں، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ آہستہ آہستہ اس کو خشک کر کے رکھتے جائیں. ٹریکٹر سے ریپر والی مشین سے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، اور بہت ساری مشینیں آ گئی. خود ٹھیکے بھی کٹوا سکتے ہیں. 1 ایکڑ کٹوا کے رکھ دیں، بھریاں بنا کے اس کو خشک ہی کرنا. لوسن کا خشک کرنا تھوڑا سا پلاسٹک پہ ڈال کے کریں جب دھوپ ہو. سدا بہار لوسن تو سارا سال رہتا ہے. اسی طرح روڈ گراس ہے. روڈ گراس آپ خشک کٹ کے ڈالیں اور ساتھ لوسن ڈالیں، یا لوسن خشک کر لیں تو روڈ گراس ڈالیں. تو آپ کو ونڈے کی ضرورت نہیں. 10 جو لیٹر جانور دودھ دیتا ہے اس کو 12 CP کا چاہیے. TMR کیا یہ سارا جو ہم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں TMR. اس میں آپ کیلشیم ڈال لیں تھوڑا سا اور وائٹامن ڈال لیں بس. تو 1-2 کلو اگر اچھی بھینس ہے تو وہ اس کو 2 کلو ونڈا ہو جائے گا. 4 کلو سے 2 کلو ہو جائے گا. اور نوکر جو ختم ہو جائے گا خرچہ. نوکر جب ختم ہوگا تو پھر عام جو مالک ہے جو جانور رکھتے ہیں ان کو سارا خرچہ ہی اسی کا ہے، تو یہ مائنس ہو جائے گا. تو سائلیج کے علاوہ یہ سبسٹیچیوٹ ہے کہ آپ ہے بنائیں، روڈ گراس لگائیں. اور اب ہم نیپیئر گراس بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. وہ کلمے جا کے جس کے پاس روڈ گراس کے بھی پیسے نہیں ہیں وہ کلمے لے لے کین سیڈ سے. وہ اب لگائے گا تو 4-5 مہینے بعد وہ گنے کی طرح اگتا ہے بہت تیز. اس کی کٹنگ کر کے خود لگا لیں. وہ 10 سال تک چارہ سبز اس کا ہوگا اور اس کی گروتھ بہت اچھی ہے. بار بار جو خرچہ ختم ہو جائے گا آپ کا، جو ٹریکٹر اور اس کو تیاری کرنی اور بیج ڈالنا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ہمارے جانور بھی پروفٹیبل ہیں. ان کو ان کے بچے آپ کاف سٹارٹر پہ کریں پرورش. کاف سٹارٹر پہ انشاءاللہ جو اگلا پروگرام میرا ہوگا کاف سٹارٹر پہ ہوگا. چینل آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام میرا ہوگا بچوں سے دودھ سے زیادہ آمدن حاصل کرنے کا طریقہ. تو اسی کا ساتھ خدا حافظ.